Okay, so welcome back. All right, you all have joined. Okay, so what we were doing yesterday, we have started ER model, that is entity relationship model, one of the very important model of a data model. What is a data model? Who will tell me? All right, before asking this, let me ask one thing. How you are finding this subject? कैसा लग रहा है subject? हाँ जी, please come up again. What you said? I am asking how you are finding this subject. Subject कैसा है DBMS? Are you all liking this subject? यस मैम सही है सर. बस एक ही स्टूडेंट है सिद्धार्थ. What about others? नो मैम सही है. All right. So what I was asking, see, this is a very interesting subject. As we proceed ahead, you'll be learning a lot of new things. ठीक है, जिसमें आपका काफी इंटरेस्ट डेवलप होगा. Moreover, अगर आप you are in the third year, right? So if some of you are interested in giving any competitive exam like GATE, I think you all must appear in your third year itself and in your final year also. So third year में you'll get an idea कि what kind of question put up. And if you find out कि DBMS का जब prepare करोगे ना, there is a lot of weightage that comes up with from DBMS. So आपको पता चलेगा कि that this subject plays a lot of important role. Moreover, अगर if you go for any of the interviews, then most of the database companies, क्योंकि आजकल जितनी भी companies है, any MNC अगर आप लेते हो, everyone is going to ask you question from database. So database is having a lot of important role. ठीक है, so try to understand the subject. और कोई डाउट होता है तो प्लीज डू आस्क मी. एंड हमने तो अभी बस स्टार्ट ही किया है. वी आर जस्ट डूइंग द इंट्रोडक्टरी सेक्शन. अभी वी आर एट मॉड्यूल 1. ठीक है, तो डेटा मॉडल हमने स्टार्ट किया था. सो व्हाट इज अ डेटा मॉडल? क्या होता है डेटा मॉडल? व्हाई डू वी यूज डेटा मॉडल? हाँ जी विकास.
Okay, so data model basically it is the best way to describe the logical structure of the database or to describe the designing of the database, right? So we have studied we have divided our database into various layers. So har ek layer pe how the data will look like, or if in layman terms, if we talk about if any design that gives us the blueprint about the database, what will be the all nodes, कौन सी nodes होंगी, how they are connected with each other, how the data will stay at particular node. तो ये सारी चीजें हमें data model से पता चलती है, right? और data models को हमने various categories में divide किया है. It could be hierarchical model, it could be a network model, or the object oriented model, and the ER model. ER model, that is an entity relationship model. This is a very important model that basically gives the conceptual knowledge, है ना. हमने पढ़ा था कि डेटाबेस डिजाइनिंग के बारे में हमें बताता है, कंसेप्चुअल नॉलेज देता है कि हाउ ऑल द एंटिटीज, अब ये इसका नाम ही एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, देन दैट्स व्हाई इट इज यूजिंग द थ्री बेसिक कंसेप्ट. वन इज एंटिटी, एक एंटिटी के बारे में बात करेगा, एक रिलेशनशिप के बारे में बात करेगा, ठीक है, एंड एसोसिएशन बिटवीन देम, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटिटी? वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस यस्टरडे. एंटिटी क्या होता है, एंटिटी सेट क्या होता है, एंटिटी टाइप क्या होता है, ऑल दिस आर द काइंड ऑफ सिमिलर टर्म्स, ठीक है. तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटिटी? सागर, क्या होता है एंटिटी? यस, एंटिटी क्या होता है? Any real world object that has its physical existence is being termed as entity, ठीक है. So entity is nothing but any real world thing जिसका अपनी कोई properties है, जिनकी अपनी कोई attributes है, जिसको आप explain कर सकते हो. Moreover, you can take any like company या job जिसकी कोई conceptual existence है, ठीक है. So every entity is being described with the help of properties जिसको हम क्या बुलाते हैं? Attributes in your ER model, ठीक है. Just hang on, एक मिनट रुको. Okay, so what I was saying कि any entity that has a conceptual existence or the physical existence जिसको आप explain करते हो with the help of properties. हमने बहुत सारी properties देखी थी, ठीक है. अब यहाँ पे student नाम की एक, अगर हम बोल रहे हैं कि एक entity type है और E1, E2, E3 क्या है, इसके entities है, ठीक है, और इनके collection को क्या हम बुला रहे हैं? हम entity set. तो इसमें कोई doubt था? क्या होता है entity type, what is entity, what is entity set? ये सबको क्लियर है? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? व्हाट आर एट्रीब्यूट्स? हाँ जी निहारिका, व्हाट आर एट्रीब्यूट्स इन ER मॉडल? निहारिका, डोंट यू वांट टू स्पीक, एनी वन ऑफ यू? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैम जैसे कि मैम किसी स्टूडेंट का डेटा, उसमें आईडी, उसकी फोन नंबर, नेम और एज. लेट हर आंसर. बोलो निहारिका. Yes, ma'am. What's the question? I ask you about what are attributes in ER model. ER model attributes. हाँ. मैम जैसे किसी भी जो एक पर्टिकुलर कोई भी एंटिटी टाइप जिसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, जैसे एग्जांपल में किसी का नेम, रोल नंबर, डेट. जैसे नेम किसी का सेम हो सकता है, रोल नंबर हम कंसिडर कर सकते हैं, एज और एड्रेस. So these are the properties that
describe any entity, like अगर हम किसी entity की बात करते हैं student, so attributes are nothing but these are the properties which help us to describe about entities, right? So we have studied about various types of attributes, like your derived attribute. What are derived attributes? Who will answer? What are derived attributes? Aman Gupta. Derived attribute क्या होते हैं? Like see, derived attributes are the one that do not have their own, मतलब कि उनकी value we don't know at first glance. उनकी value we are going to derive from other attributes. Like हमने date of birth की बात करी. So date of birth एक ऐसा attribute है, और अगर हम we know the date of birth, we can derive the age. ठीक है? So age is a kind of a derived attribute. And how do you represent the derived attribute? कैसे represent करते हो derived attribute को? अब हम ER diagram जब draw करते हैं, we are going to represent the derived attribute with the help of dashed lines. ठीक है? सबसे पहले तो attributes are always being represented in the form of oval. उसके बाद अगर वो derived attribute है, it will be going to represent with the help of dashed lines. ठीक है? Now what are composite attributes? Composite attributes क्या होते हैं? मैम जिसके अंदर और भी एट्रीब्यूट्स हो, जिसके अंदर और भी attributes हो, ऐसे नहीं बोलोगे. Composite attributes is the one that has multiple, you can say, that can be divided into different attributes. Yeah, the best definition you can give, composite attributes that is not atomic in nature. ठीक है? तो जिसकी value जो है वो it is made up of different values, और मल्टी वैल्यू यू कैन नॉट यूज. मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स ही अलग होते हैं. तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइक ये, जिसके अंदर जैसे आपका एड्रेस है, एड्रेस इज that is being made up of many other attributes. हाँ, you are right. So this is address, and this is further being made up of many other attributes like city, state और आपकी कंट्री. तो आप कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को इस नोटेशन से डिनोट करोगे व्हेन यू आर वर्किंग विद ER डायग्राम्स. ठीक है? हमने पढ़ा था अबाउट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स. मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आर दोस दैट हैव मोर देन वन वैल्यू. लाइकवाइज योर फोन नंबर, या अगर आप कोई और एट्रीब्यूट है जिसके एक से ज्यादा वैल्यू आपके डेटाबेस में होगी, तो उसको आप रिप्रेजेंट करोगे विद डबल ओवल्स. ठीक है? तो ये सारा हमने कल पढ़ लिया था. वी हैव स्टडीड अबाउट योर की एट्रीब्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट. व्हाट इज अ की एट्रीब्यूट? That help us to identify other entities in an entity set. If we have an entity set that has a number of entities that belongs to a same entity type, and a key attribute is a one that help us to identify the remaining entities. So for every entity, like for student E1, the roll number is the one key attribute that has a unique value. ठीक है? ये क्लियर है? की एट्रीब्यूट क्या होते हैं? कंपोजिट की एट्रीब्यूट भी होता है कुछ. ठीक है? वो हम अभी थोड़ा देर में पढ़ेंगे. पहले हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं अभी कि की एट्रीब्यूट क्या है, कंपोजिट की क्या होती है, सॉरी कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, व्हाट इज अ डिराइव एट्रीब्यूट, व्हाट इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. ठीक है? ये सब क्लियर है? नाउ रिलेशनशिप टाइप एंड रिलेशनशिप सेट, ये हमने कल स्टार्ट किया था, तब हमारी क्लास ओवर हो गई थी, राइट? सो व्हाट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज? अगर देखो, इफ वी वांट टू एसोसिएट टू एंटिटीज टुगेदर, सो उन दो एंटिटीज को आपस में एसोसिएट आप कैसे कर रहे हो? विद द हेल्प ऑफ अ रिलेशनशिप. सो रिलेशनशिप इज नथिंग बट इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट एंटिटीज. अगर आपका एक यूनिवर्सिटी नाम का डेटाबेस है, राइट, एंड वी हैव वन एंटिटी लाइक अ स्टूडेंट एंड अनदर एंटिटी लाइक अ कोर्स. ठीक है? अब हाउ अ स्टूडेंट इज एसोसिएटेड विद अ कोर्स? ऑब्वियसली अ स्टूडेंट going to take part in a course or a student enrolled in a course, यही एसोसिएशन हो सकता है ना. अब आपने उस एसोसिएशन को कौन सी रिलेशनशिप से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर? enrolled in. And in your ER diagram you always enclosed your relationship into a diagonal shape and you will connect two entities together with a straight line. ठीक है? अब रिलेशनशिप तो ये हो गया, बट व्हाट इज अ रिलेशनशिप टाइप? जैसे अगर हम यहाँ पर बोल रही हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि एनरोल्ड इन इज अ रिलेशनशिप टाइप, एंड और रिलेशनशिप सेट क्या हो गया कि अगर यहाँ पर ना, जैसे स्टूडेंट क्या है? एंटिटी टाइप है,
course is also entity type. And if I talk about different entities in a student entity type, तो यहाँ पर अगर ये वाला diagram देखो, S1, S2, S3 are the 3 students, or I can say these are the 3 entities. And C1, C2, C3 are the 3 entities that belongs to the course entity type. And here E1, E2, E3 are the 3 enrollment or the 3 relationship to which these different entities are connected to each other. ठीक है, तो ये E1, E2, E3 का क्या बुलाते हैं हम इसको? एक relationship set. यहाँ तक I think we have studied yesterday. इतना हमने कल कर लिया था ना? Yes, ma'am. अब the next thing we have to start is the degree of relationship set. Degree of relationship set का मतलब क्या होता है? Basically, in degree of relationship set, we'll talk about the number of different ways the entities are connected to different entities. ठीक है, 1 to 1 है, 1 to many है, many to 1 है, many to many है. 4 degrees होती हैं और जिसको हम बोलते हैं मैपिंग कंस्ट्रेंट. और मैपिंग कंस्ट्रेंट्स के को स्टार्ट करने से पहले लेट्स get understand what are the various type of relationship exist between entities. ठीक है, so there are 4 types of relationship exist. Basically 3 types. One is your unary relationship. Unary relationship का मतलब क्या है कि if there is only one entity that is participating with a relationship, जैसे कि यहाँ पर person is married to only one person ना, person नाम की तो एक ही entity होगी और वो मैरिड टू अनदर पर्सन है, बट यहाँ पे एंटिटी तो पर्सन ही है. तो ये वाली रिलेशनशिप को हम क्या बुला रहे हैं? यूनिरी रिलेशनशिप. मैं इसका एक और एग्जांपल देती हूँ. बेसिकली यूनिरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर सिर्फ एक ही एंटिटी एक रिलेशनशिप में काम कर रही है. कोई शेयर हुआ है कुछ? ये देखो, यहाँ पे देखो, यूनिरी रिलेशनशिप के 2 तरीके होते हैं. ये व्हाट इज विजिबल टू यू? हाँ, ये विजिबल हो गया है ना. यहाँ देखो, यूनिरी रिलेशनशिप जो है इट कुड बी 1 to 1 और 1 to many. लाइकवाइज अ पर्सन इज मैरिड टू अ पर्सन. तो ये कैसी रिलेशनशिप है? यूनिरी, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन से मैरिड है बट यहाँ पर एंटिटी एक ही है. सो यूनिरी का मतलब व्हेन देयर इज ओनली वन एंटिटी दैट इज पार्टिसिपेटिंग विद द रिलेशनशिप और दैट इज एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप डायरेक्टली, तो उस तरीके की रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे? यूनिरी. एंड देयर इनका जो मैपिंग कार्डिनैलिटी है, बेसिकली इसको हम कार्डिनैलिटी, मैपिंग कार्डिनैलिटी जो है वो 1 to 1 है. किस तरीके से कनेक्टेड है? 1 to 1. ठीक है. देन देयर कुड बी 1 to many ऑल्सो. 1 to many का एग्जाम्पल क्या है कि हियर इज एन एम्प्लॉय दैट सुपरवाइजेस एनी नंबर ऑफ एम्प्लॉय. जैसे कोई एक मैनेजर है, मैनेजर इज ऑल्सो एम्प्लॉय. अब उसके अंदर कितने, उसकी टीम के अंदर कितने मेंबर्स है? लेट्स सपोज उसकी टीम के अंदर 50 मेंबर्स है, तो यहाँ पर एक मैनेजर 50 लोगों को सुपरवाइज कर रहा है. तो ये तरीके की यहाँ पर जो मैनेजर है वो भी एम्प्लॉय है और जिनको वो मैनेज कर रहा है वो भी एम्प्लॉय है. तो एंटिटी क्या है यहाँ पर? एम्प्लॉय. बट यहाँ पर उनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो यूनिरी है, बट काइंड ऑफ कार्डिनैलिटी क्या है? 1 to many. सो यूनिरी रिलेशनशिप के अंदर 2 तरीके से they can be associated. Either they are 1 to 1 associated or 1 to many associated. Is it clear to you all why we are studying all these things? Because when you are asked about, आपको एग्जाम में एक सिचुएशन दे दी जाएगी and they will ask you to draw a ER diagram for that and represent all the cardinalities, represent all the relationships. So we are studying about this scratch की relationships कितने तरीके की हो सकती हैं, उनके बीच में किस तरीके की डिग्री they can associate, मतलब कि how the way the entities are associated with each other. तो अभी हम ये small snippets में पढ़ रहे हैं. Then we'll be making one ER diagram और फिर वहां पर ये सब आप implement करोगे. ठीक है. Next thing, they might ask you in theory question that what are the various mapping constraint in ER model. तो ये मैपिंग कंस्ट्रेंट सारे आपको समझाने पड़ेंगे. दैट इज 1 to 1, 1 to many, many to 1. ठीक है. तो ये समझ में आया कि हम क्या पढ़ रहे हैं? Yes, ma'am. तो वी हैव स्टार्टेड विद कितनी तरीके की रिलेशनशिप्स होती हैं. पहली रिलेशनशिप हमने पढ़ी कि यूनिरी रिलेशनशिप है. यूनिरी का मतलब क्या है कि व्हेन देयर इज ओनली वन एंटिटी दैट इज पार्टिसिपेटिंग विद अ रिलेशनशिप, or it could participate in 2 ways. One is 1 to 1, ठीक है, and one is 1 to many.
1 to 1 का एग्जाम्पल यहाँ पर है कि एक पर्सन इज मैरिड टू अनदर पर्सन, ठीक है, तो ये कैसी रिलेशनशिप है, इट इज अ 1 to 1 यूनिटरी रिलेशनशिप. And when we talk about 1 to many, there we have given an example that there is one employee that supervises many employees, ठीक है. So ये वाला example किसका हो गया, 1 to many urinary relationship. Now let's proceed ahead. Then second kind of a relationship that can exist between entities is a binary relationship. Now what is a binary relationship? Binary का मतलब आप सबको पता है, that is 2. So when there are two entities that are participating with the relationship, or when there are two entities that are associated via a relationship, उसको हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशनशिप. जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल और पहले भी दिया था कि एक स्टूडेंट है that enrolled in a course. तो स्टूडेंट और कोर्स में एनरोलमेंट कैसा है, 1 to 1. यहाँ पर देखो, one student is enrolled in one course. और इसमें अभी इस एग्जाम्पल को ना हम इसकी कार्डिनलिटी में पढ़ेंगे, जो अभी इसमें बताया ना, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दिस आल्सो कि 1 to many है, many to 1 है, दैट विल बी स्टडिंग. बट अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड कि बाइनरी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है जिसमें we are showing that there are two entities that are participating directly with a association or that are participating in a relationship जिसको हम नाम दे रहे हैं enrolled in. ठीक है, is it clear? और एक और होता है एन एरे रिलेशनशिप. अब एन एरे क्या मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो, 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, देयर कुड बी 3 एरे रिलेशनशिप, देयर कुड बी 4 एरे रिलेशनशिप. 3 को बोलते हैं टर्नरी रिलेशनशिप. टर्नरी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नरी? दैट इज 3 व्हेन देयर आर 3 एंटिटीज दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप. ठीक है, दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशन. लाइकवाइज दिस, जस्ट अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे देखो, देयर इज वन डॉक्टर, मेडिसिन और पेशेंट. So doctor, medicine, patient, ये तीनों क्या है? All the 3 are the entities and they are associated via a relationship which we call as prescribe. So doctor prescribes medicine and doctor prescribe medicine to whom? To a patient. So जहाँ पर 3 entities आपस में associate होती है, उस तरीके की relationship को हम क्या बोलते हैं? Ternary relationship. So ये clear है? What is ternary relationship? What is binary and what is unary? Yes, ma'am. Okay. Now, after this, we have to see what is the degree to which they are connected to each other. मतलब कि what is the mapping cardinality? Mapping cardinality क्या है? मतलब कि the number of times an entity is participating in a relationship with different entity. ठीक है, इसको बोलते हैं cardinality. So what is cardinality? Cardinality is the number of times an entity is participating in a relationship with different entity, right? So it could be 1 to 1. 1 to 1 मैंने अभी आपको बताया था, जैसे हमने उसमें दिखाया था कि a person is married to another person. तो यहाँ पर हमने दिखाया 1 to 1 में the person could be a male. अब when I'm categorizing my person to male and female, so male नाम की मैंने एक different entity बनाई, female नाम की मैंने एक different entity बनाई, and now I'm showing that one male is married to one female. तो ये मैंने जो रिलेशनशिप दिखाई, दैट इज अ बाइनरी रिलेशनशिप. एंड इसमें जो एंटिटीज है, हाउ दे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन 1 to 1 वे. ठीक है, तो 1 to 1 वाली क्लियर है. इसको 1 to 1 को आप एंटिटी सेट में और रिलेशनशिप सेट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. इस सेट फॉर्मेट में भी कर सकते हो, जैसे M1, M2, M3. यहाँ पे 3 मेल्स है, F1, F2, F3, यहाँ पे 3 फीमेल्स है. तो ये कौन सा एंटिटी सेट है? ये आपका फीमेल एंटिटी सेट है. और ये कौन सा है? मेल एंटिटी सेट. एंड दिस इज योर रिलेशनशिप व्हिच वी कॉल्ड एज मैरिड टू. तो यहाँ पर देखो, हर एक जो एंटिटी है वो दूसरी एंटिटी से सिर्फ 1 to 1 वे में कनेक्टेड है. कैन यू ऑल सी दैट कि जो M1 इज कनेक्टेड टू F2 वाया R1, M2 इज कनेक्टेड टू F1 वाया R2 एंड M3 इज कनेक्टेड टू F3 वाया R3. देयर इज ओनली वन लिंक, दैट्स यू कैन सी. तो 1 to 1 का एग्जाम्पल है ये. ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And if I talk you about 1 to many, 1 to many का let me before proceeding ahead, अपने हिसाब से बताओ, कोई भी एग्जाम्पल मुझे दो जिसमें many to 1 हम शो कर सकते हैं. ओके, पहले many to 1 पढ़ने से पहले 1 to many बताओ.
वन टू मेनी। देखो अभी हमने क्या देखा, हमें 4 तरीके की कार्डिनलिटीज पढ़नी है, ठीक है। पहली तो हमने देखी 1 to 1, जिसको हम बोलते हैं 1:1, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देन वन इज 1 to many, that is 1:n. Then the third is many to 1, that we represent like m:1, and the fourth one is many to many, and we'll represent it like m:n. ठीक है, we have seen the case of 1 to 1. Now tell me a case of 1 to many, any case जो आपके दिमाग में आता है। एक स्टूडेंट जो Teacher. काफी सारे सब्जेक्ट्स में एनरोल्ड हो। हाँ हाँ, ओके। सो यू आर सेइंग कि स्टूडेंट जो है, और रिलेशनशिप एनरोल्ड बता दिया आपने, और वन स्टूडेंट एनरोल्ड इन मेनी कोर्सेज, ठीक है, ओके। एंड Teacher and student. हाँ जी, टीचर और स्टूडेंट में, वन स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट में कैसे 1 to many? टीचर और स्टूडेंट में ना, 1 to. एक टीचर ma'am. बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। स्टूडेंट टू मैनी में कर सकते हो। वन टीचर कैन टीच मैनी स्टूडेंट्स, बट वन स्टूडेंट फॉर वन सब्जेक्ट हैज ओनली वन टीचर। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 1 to many का। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, बट विल बी डूइंग इट इन वेरी डिटेल्ड मैनर, नो वरीज। सो यहाँ पर देखो, आई शो यू एन एग्जाम्पल ऑफ 1 to many फर्स्ट। सो 1 to many का एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जो हमने स्टूडेंट और कोर्स के लिए पढ़ा था ना, वही वाला एग्जाम्पल आई विल बी टेलिंग यू फॉर दिस। Yeah. इसमें तो दिया ही नहीं हुआ, लेट मी शो यू दिस डॉक्यूमेंट। वन टू मैनी का यहाँ पर देखो, आई थिंक 1 to many का एग्जाम्पल। चलो पहले मैनी टू वन पढ़ते हैं, देन 1 to many का मैं देखती हूँ कि यहाँ पे दिया क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ देखो, there are many employees that works for a department, that is, अगर हम एग्जांपल देते हैं CSC डिपार्टमेंट के, तो CSC डिपार्टमेंट में बहुत सारे टीचर्स हैं that belongs to only one department, और यू कैन से यहाँ पे स्टूडेंट हो गया और यहाँ पे कोर्स हो गया, जो एग्जांपल आपने दिया था। तो स्टूडेंट, there are very many students that enrolled for one course, है ना। जैसे आपके कंप्यूटर साइंस लेट सपोज अ कोर्स है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं that belongs to a same course or that enrolled in a one same course। many to one का एग्जाम्पल ये हो गया। Either you can give an example of employee that works in a department, or you can give an example of student that belongs to a course or that enrolls to a course, ठीक है। And the third one, इसका पहले तो वो देख लो, जैसे यहाँ पर देखो, we are showing 1 to many, sorry, many to 1। तो यहाँ पे देखो, there are many students, S2, S3, S4, all the 3 students are enrolled in the same course C3। So this is a kind of relationship that we are showing via R2, R3, R4, S2, S3, S4 are connected to C3। So this is the example of many to 1, ठीक है। many to many का example में अगर हम ये situation same student और course वाली situation ले सकते हैं कि there could be many students that can belongs to a same course, a course can have many number of students। तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया आपका many to many का। जैसे ये देखो, कि एक बच्चा जो है एक से ज्यादा कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकता है ना, और सेम स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट, और डिफरेंट स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन अ सेम कोर्स। तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया many to many का। क्लियर हो रहा है many to many का एग्जाम्पल? अनुष्या, यस मैम। अनुष्या, पॉल,
Rule number 24. Anusaya. This is the way you pronounce, no? You there in the class? Rule number 24. See, this is again an example of many to many का example यहाँ पे दिया हुआ है कि a book here can have many authors, है ना? And many authors can wrote a single book. So this is a kind of example which is a mixture of the above two, that is one to one or one to many में कि एक book को different authors लिख सकते हैं और different authors together can wrote a single book. ठीक है, तो ये this is an example of many to one, sorry many to many. Again many to many का हमने example student और course में भी दिया था कि different student can take part in a same course और एक कोर्स में एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ मेनी टू मेनी. और आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, दिस डायग्राम. ठीक है, एंड आई वाज टेलिंग यू अबाउट वन टू मेनी, है ना? इसका एग्जांपल बताओ क्या होगा? अरे इसका एग्जांपल क्या होगा वन टू मेनी का? One teacher, many students. यस, सो वन टू मेनी का तो बहुत सिंपल है. वन टू मेनी को ना यू कैन से लाइक कि इट कुड बी से लाइक कि वन टू मेनी और मेनी टू वन. जैसे अ स्टूडेंट जो है, वन स्टूडेंट वर्क्स ऑन मेनी प्रोजेक्ट्स. अगर मैं ये बोलूँ स्टूडेंट और प्रोजेक्ट के बीच में, या वन टीचर टीच मेनी स्टूडेंट, तो टीचर और स्टूडेंट में रिलेशनशिप हो गया वन टू मेनी का. ठीक है, ये तो डोंट टेक इट सो कॉम्प्लेक्स. जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे ईआर डायग्राम में तो बहुत इजीली रिप्रेजेंट हो जाएगा, डोंट वरी. सो रिलेशनशिप हमने आज की क्लास में स्टार्ट किया था. What are the various relationship that you can express? तो relationship it could be unary relationship जहाँ पर आपकी एक entity रिलेशनशिप के साथ एसोसिएट होती है, सिर्फ एक ही एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही है इन ए रिलेशन. बाइनरी रिलेशनशिप में हमने पढ़ा व्हेन देयर आर टू एंटिटीज दैट आर पार्टिसिपेटिंग. और बाइनरी रिलेशनशिप के बाद हमने पढ़ा एन एरे रिलेशनशिप, जिसमें हमने एग्जांपल देखा टर्नरी का. टर्नरी में व्हाट वी हैव स्टडीड कि यहाँ पर आपकी तीन एंटिटीज है दैट आर एसोसिएटेड और दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशन. जैसे हमने बोला कि डॉक्टर, पेशेंट और मेडिसिन. तो डॉक्टर और पेशेंट और मेडिसिन में क्या रिलेशनशिप दिखाया था हमने कि अगर लेट्स सपोज डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन टू पेशेंट और डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन टू पेशेंट में रिलेशनशिप यहाँ पर क्या हो गया? प्रिस्क्राइब. ठीक है, अब इसके बीच में कार्डिनैलिटी कैसे शो हो सकती है? इट कुड बी वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन एंड मेनी टू मेनी. ठीक है, तो ये चार तरीके की रिलेशनशिप दैट वी हैव सीन. नाउ आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, अब ये जो पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन भी दो तरीके का हो सकता है. जो रिलेशनशिप जो पार्टिसिपेट कर रही है ना, इट कुड बी आल्सो इन टू वेज. ईदर दे कुड पार्टिसिपेट टोटल और दे कुड पार्टिसिपेट पार्शियली दे कुड पार्टिसिपेट. टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या होता है कि अभी तो हमने देखा कि जैसे स्टूडेंट है और कोर्स है, स्टूडेंट और कोर्स में जो रिलेशनशिप हमने दिखाया दैट वाज एनरोल्ड रिलेशनशिप, है ना? अब हर स्टूडेंट किसी ना किसी कोर्स में तो एनरोल्ड होगा ही, है ना? अगर आपको कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपका कोई कोर्स है, लेट्स सपोज यू हैव 4 कोर्सेज, ईदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स. सो एवरी स्टूडेंट इज ईदर एनरोल्ड इन एनी ऑफ द कोर्स. तो यहाँ पर स्टूडेंट और कोर्स में स्टूडेंट वाली एंटिटी कैसे पार्टिसिपेट कर रही है एनरोल्ड वाले रिलेशनशिप में? टोटल. सो टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? जहां पर सारे बच्चे किसी ना किसी कोर्स में एनरोल्ड होंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज टोटल पार्टिसिपेशन. इज इट ऑल क्लियर टू यू? नाम से क्लियर हो रहा है. टोटल पार्टिसिपेशन में व्हेन
all the entities from an entity type is participating in a relationship completely. So उस तरीके के participation को we are telling about this participation as total participation. उसको represent कैसे करते हैं? By double lines in your ER diagram like this. देखो यहाँ पे diagram में देखो, जैसे ये देखो स्टूडेंट है, कोर्स है, many student can participate in many course, but student और enrolled में जो participation है यहाँ पे shown, that is double total participation, because all the students are taking enrollment in a course. So is it clear about total participation? ये clear है? Yes, ma'am. Partial participation क्या होगा? Partial participation ये हो सकता है कि there may be a situation where the entities that belongs to entity type, some of the entities may or may not participate in a relationship. ठीक है? So let's suppose there are some courses, जरूरी नहीं है, जैसे कोर्स सारे एक आपका कोर्स एक्स्ट्रा कोर्स अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट जो है उस कोर्स में पार्टिसिपेट करें. The सारे स्टूडेंट आर पार्टिसिपेटिंग इन सम कोर्सेज, बट एक ऐसा कोर्स है जिसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है. तो ऑल द कोर्सेज आर नॉट टेकिंग पार्टिसिपेशन इन स्टूडेंट एनरोलमेंट. जैसे हमारे पास 5 कोर्स है, सिर्फ 4 कोर्स में ही स्टूडेंट एनरोल कर रहे हैं, बट सारे स्टूडेंट एनरोल कर रहे हैं किसी ना किसी कोर्स में, बट देयर इज 1 कोर्स लेफ्ट. तो यहाँ पर ये कैसा पार्टिसिपेशन हुआ? पार्शियल. क्लियर हुआ? ये सिचुएशन क्लियर हुई जो मैंने बताई अभी? Yes, ma'am. What about others? There's only one student who always respond. बाकी लोग क्या करते हैं क्लास में बैठ के? Yes, ma'am. अब yes ma'am क्या होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन? बताओ अभिनव. Yes, प्रियांशु, यू से क्या होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन? Ma'am, the entirety in the entity set may or may not participate in the इंग्लिश करके नहीं बोलना है. मैम इसमें मतलब कि पार्टिसिपेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, कोई कंपल्सन नहीं है. जैसे कि एक कोर्स अगर नया लॉन्च होता है तो उसमें सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. हाँ, so this is a kind of partial participation. जैसे अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट एक एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में, तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में अगर मैंने दिखाया दोनों तरफ डबल लाइंस, तो ये एक केस है जब मैं टोटल पार्टिसिपेशन बता रही हूँ कि हर एम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करेगा और सारे डिपार्टमेंट में कोई ना कोई एम्प्लॉय काम करेगा. मतलब डिपार्टमेंट्स भी वर्क्स वाली रिलेशनशिप में सारे डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सारे सारे एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्क्स वाले डिपार्टमेंट में टू गेट वर्क्स विद डिपार्टमेंट. तो ये तो एग्जांपल हो गया टोटल पार्टिसिपेशन, जहां पर दोनों एंटिटीज जो है पूरी तरह से रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है. बट पार्शियल के केस में क्या होता है, अगर कोई एंटिटी इफ इट इज मे और मे नॉट बी, मतलब कि जरूरी नहीं है कि सारे कोर्सेज में बच्चे एडमिशन लें. ठीक है, देयर मे बी 1 कोर्स जिसमें एडमिशन नहीं हुआ है, कोई भी एडमिशन नहीं हुआ है, तो उसका पार्टिसिपेशन क्या है यहाँ पर? पार्शियल. मे बी और मे नॉट बी. ठीक है, तो पार्शियल को आप सिंपल 1 लाइन से रिप्रेजेंट करते हो. नाउ आफ्टर स्टडीइंग दिस, जैसे यहाँ पर देखो इस डायग्राम में ये आपको दिस इज योर एंटिटी सेट, दिस इज योर रिलेशनशिप सेट एंड दिस इज योर अनदर एंटिटी सेट. तो यहाँ पर 4 तरीके की रिलेशनशिप है, मतलब 4 रिलेशनशिप R1 R2